Good morning, students. Let us start with a new topic from your unit 2, that is solutions. The topic is solubility. Before starting this topic, solubility, let us discuss what are solutions. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances whose composition can be varied within certain limits. ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें जो पहला टॉपिक आता है हमारा मास परसेंटेज। W अपॉन W मीन्स वेट अपॉन वेट। मास परसेंटेज होता है द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट volume percentage. Similarly, volume percentage is defined as the volume of the component per 100 parts by volume of the solution. Mass by volume percentage, it is also defined as the mass of the solute dissolved in 100 ml of the solution. Next is parts per million, ppm. It is the parts of a component per million parts of the solution. Next, molarity. Molarity is defined as the number of moles of solute dissolved per liter of the solution. It is denoted by capital M. Next, molality. Molality of a solution is defined as the number of moles of the solute dissolved per 1000 gram of the solvent. Molality is denoted by small m. Next है normality. Normality is defined as the gram equivalent of solute dissolved per liter of the solution. Formality, it is defined as the number of formula mass of solute dissolved per liter of the solution. Normality is denoted by capital M and formality is denoted by capital F. These all terms are known as concentration terms for the solution. एक टर्म हमारी और है और वो है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles, that is solvent and solute present in the solution. Now, what is solubility? Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature. किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने ये पानी लिया, इसमें हम सपोज करो NaCl डालते गए. NaCl हम डालते गए, एक समय आएगा NaCl इसमें घुलना स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा. जिस समय ये घुलना बंद होगा उतना NaCl इसमें डिजॉल्व हो गया, वो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है. नेक्स्ट है फिर डिसोल्यूशन. इस प्रोसेस को, सॉल्यूशन बनाने के प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं हम. डिसोल्यूशन, when we add a solid solute to the solvent, the solute particle go into the liquid and its concentration in the solution increases. This process is known as dissolution. Solubility of solids in liquids. हमने सॉल्यूट लिया प्लस इसको सॉल्वेंट में डाल दिया. अब देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास सॉल्यूशन बन गया. इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं. व्हाट इज इट कॉल्ड? डिसोल्यूशन. अब बैकवर्ड प्रोसेस, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट बनेगा और सॉल्यूट बनेगा. जो बैकवर्ड रिएक्शन है इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. अब ये कब होता है? क्रिस्टलाइजेशन होता है जब हम सॉल्यूट डालते गए, सॉल्वेंट में डालते गए, तो जब एक समय आएगा सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा.
घुलना बंद हुआ तो घुलना क्या होता है, सॉल्यूट तो सॉल्यूशन में जा रहा है, सॉल्वेंट में जा रहा है, पर कुछ सॉल्वेंट से सॉल्यूट पार्टिकल है वो दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल के साथ मिलकर के एक सॉलिड मास बनाते हैं जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो अब क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन है, some solute particle in a solution collide with the solid solute particles and get precipitated out. This process is called as crystallization. Saturated solution, अभी हमने डिसोल्यूशन पढ़ा, ये वाटर लिया था, इसमें हम NaCl डाल रहे थे। अब एक समय आया था कि NaCl इसमें घुलना बंद हो गया था। जिस समय NaCl इसमें घुलना बंद हो गया था, हमने NaCl डालना स्टॉप कर दिया, रोक दिया। अब ये जो सॉल्यूशन बना, ये उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मतलब क्या हुआ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सॉल्यूट नहीं घोला जा सकता एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन हुई, ए सॉल्यूशन which contain maximum amount of solute which dissolves completely in a given solvent at a particular temperature. This is the definition of a saturated solution, that is a solution which contains maximum amount of solute which dissolves completely in a given solvent at a particular temperature. अब हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट से कम भी होगा और मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा भी होगा। अब ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज, फर्स्ट इट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसकी डेफिनेशन क्या हुई, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution which contains less amount of solute than required for forming a saturated solution. अगर हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होनी चाहिए उससे कम है, उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा मैक्सिमम से ज्यादा हो जाएगी। तो व्हाट इज ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन एक्सेस ऑफ सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। Solubility at a given temperature is defined as the amount of the solute that dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature to form saturated solution. Now the exact definition of solubility comes कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेना, उसमें कितना सॉल्यूट डाला जाए ताकि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड बन जाए, तो उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो ये कंफर्म्ड डेफिनेशन हुई। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसकी जो यूनिट्स है वो मोल पर डेसीमीटर, सॉल्युबिलिटी को हम मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इसमें एक्सप्रेस करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड solute in a liquid. In general, the solubility of a solid solute in a solvent depends upon the following factors. जो फैक्टर्स हमारे पास हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा है प्रेशर। These are three factors on which solubility of a solid solute depends. अब इसमें पहला है nature of the solute and the solvent. देखिए
इसके लिए बेसिक रूल है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। दिस इज द बेसिक रूल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब हम देखते हैं कि शुगर है और सॉल्ट है, दे आर easily dissolves in water because either they are ionic or polar, meaning thereby कि वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें आयनिक और पोलर इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। बट अगर हम बेंजीन लें, ईथर लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड लें, दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, इनको हम या तो ऑर्गेनिक बोलेंगे या कोवलेंट बोलेंगे। अब इनमें अगर हम डिसॉल्व करना चाहें सॉल्ट को और शुगर को तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे, पर अगर हम इनमें नेफ्थालीन, एंथ्रासीन, दीज आर आल्सो नॉन पोलर, कौन कौन से, नेफ्थालीन और एंथ्रासीन, अगर हम इनको बेंजीन में, ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करना चाहें तो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। तो मतलब क्या है बोलने का कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा। दिस इज मीनिंग देयर बाय नेचर एक जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है टेम्परेचर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन सॉल्वेंट में डिक्रीज और इंक्रीज with temperature, that is the solubility is affected by temperature in three ways. Three types of trends are there. First is when delta H of the solution is positive. When delta H of the solution is positive, the solubility of the solute increases with the increase in temperature. This is solute plus solvent plus heat, हमने टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन है, सॉल्यूशन बनेगा, डेल्टा H इज पॉजिटिव। ओके, अब अगर हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। तो इस तरह के सॉल्वेंट सॉल्यूट हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, AgNO3 एंड NaCl। इन सब की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और सबसे ज्यादा होती है सिल्वर नाइट्रेट की। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेज। KNO3 की भी सेम रेंज में ही होती है। तो दीज आर सम सॉल्यूट्स whose solubility increases with increase in temperature. When delta H of the solution is negative, the solubility of the solute decreases with increase in temperature. Solute plus solvent giving you in forward reaction solution plus heat and delta H is negative. अब इसमें देखें हीट टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिएक्शन सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बनने के कारण ही हीट प्रोड्यूस हो रही है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शुरू हो जाएगा। कैसे, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ पे
हीट पहले से ही प्रोड्यूस हो रही थी और प्रोड्यूस कर दी, तो अब ये क्या करेगा, हीट को कम करने की कोशिश करेगा। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस तरह के सॉल्यूट के हमारे पास एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है सीरियम सल्फेट। सीरियम सल्फेट, अब इसका डिसोल्यूशन, सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर इन इनवर्स फॉर्म, दैट इज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द डिसोल्यूशन ऑफ सीरियम सल्फेट डिक्रीजेज। अगला एग्जाम्पल है Na2CO3, Na2CO3H2O। इसकी भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अर्थात दीज रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। कैसे रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। नेक्स्ट है थर्ड टाइप है समटाइम्स solubility shows irregular behavior with the increase in temperature. Let us take the example of sodium sulfate 10H2O। फॉरवर्ड रिएक्शन में सोडियम सल्फेट का डिसोल्यूशन हो जाता है, सॉल्यूशन बनता है अबव 32.8 डिग्री सेल्सियस और बिलो 32.8 डिग्री सेल्सियस क्या है, दोबारा से क्या हो रहा है, Na2SO4 10H2O बन रहा है इन बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखिए Na2SO4 क्या कर रहा है, 32.8 डिग्री पे मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, 32.8 डिग्री सेल्सियस से पहले भी डिक्रीज हो जाती है। इस तरह के और एग्जांपल्स हैं हमारे पास फेरस सल्फेट 7H2O, ये भी 61.8 डिग्री सेल्सियस के बाद इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तब तक इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। CaCl2 6H2, इसकी सॉल्युबिलिटी इरेगुलर ट्रेंड, बढ़ती तो है लेकिन एक इरेगुलर ट्रेंड के साथ बढ़ती है। तो समटाइम सॉल्युबिलिटी शोज इरेगुलर बिहेवियर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और उनके एग्जांपल्स है हमारे पास सोडियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारा द सॉल्युबिलिटी। देखिए प्रेशर में इसका रोल नेग्लिजिबल है, रोल क्या है, नेग्लिजिबल है। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कि सपोज करो हमने NaCl को डिसॉल्व किया वाटर में, किसमें डिसॉल्व किया, वाटर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, फिर NaCl को ही डिसॉल्व किया हमने 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब इन दोनों में जो इंक्रीज हुई सॉल्युबिलिटी वो हुई 2.3%, मतलब कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, hence pressure have very little effect on the solubility of a solute in liquid solvent। अब है solubility of gases in liquids। Factors affecting the solubility of a gas in liquid, वही फैक्टर हैं तीन। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट, सेकंड इज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड थर्ड इज प्रेशर। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। देखते हैं, दीज आर द गैसेस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम। These dissolve in water only to a small extent। अब ये और गैसेज हैं अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, ये वाटर में
इजीली डिजॉल्व हो जाती है। और इनके डिसोल्यूशन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि दे रिएक्ट विद वाटर, दे रिएक्ट विद वाटर। तो इनकी डिसोल्यूशन वेरी लिटिल है वाटर में और इनकी डिसोल्यूशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम दूसरा सॉल्वेंट ले लेते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एल्कोहल में इजीली डिजॉल्व हो जाती हैं, इजीली डिजॉल्व हो जाती हैं। और ये जो दूसरी गैसेज हैं जैसे अमोनिया और H2S, ये एल्कोहल में इजीली डिजॉल्व नहीं होती। देयर solubility in alcohol is very, meaning thereby gases which chemically react, जो केमिकली रिएक्ट कर जाती हैं सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट से, वहां पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और जो रिएक्ट नहीं करती उनकी सॉल्युबिलिटी कम है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट, जनरली गैसेस डिसॉल्व इन ए लिक्विड इन द फॉलोइंग मैनर, गैस प्लस सॉल्वेंट गिविंग यू सॉल्यूशन प्लस हीट। डेल्टा H इज नेगेटिव, दैट इज जब गैस किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है तो हीट इंक्रीज होती है। अब सपोज करो हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल देयर विल बी ए बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज बी इंक्रीज टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिक्रीजेस, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लेट अस सी दिस कंटेनर। इसमें देखिए हमने एक लिक्विड लिया हुआ है और लिक्विड के ऊपर गैस ली हुई है। अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर के जो पिस्टन ऊपर लगा हुआ है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो लिक्विड के ऊपर गैस थी वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाती है और इस तरह से एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड इंक्रीज हुए ना। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो बढ़ जाएगी। Hence, the solubility of a gas increases with the increase in pressure. The solubility of a gas increases with the increase in pressure. हेनरी लॉ। अब विलियम हेनरी जी ने नंबर ऑफ स्टडी किया ऑन द solubility of a gas in a liquid और उसने एक लॉ दी और वो लॉ है M is proportional to P, meaning thereby the mass of a gas dissolved in a particular liquid is directly proportional to the pressure of the gas on the liquid. अब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है, यानी M इज इक्वल टू Kp। स्टेटमेंट क्या हुई, द मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। जो गैस का प्रेशर है, किस गैस का, जो इक्विलिब्रियम है सॉल्यूशन के साथ, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम इस लॉ को, हेनरी लॉ को इस तरह से भी देख सकते हैं कि let X is the mole fraction of the gas in the liquid and it is proportional to the partial pressure of the gas. ये लॉ ड्यूरिंग हेनरीज रिजाइन, डाल्टन ने इस लॉ के ऊपर
अपने आप काम किया था, उन्होंने भी काम किया था और सिमिलर लॉ उन्होंने भी दी हुई थी, लेकिन कंबाइंडली हेनरी की जो लॉ है वो हम इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं अब दोबारा कि x इज प्रोपोर्शनल टू p, और हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू k dash p. What is x? X is the mole fraction, p is the partial of pressure of the gas, और x क्या आ गया? x is equal to k dash p, और यहाँ से हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन k डैश इंटू x, और इसको हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू के एच, कैपिटल के h इंटू x, where kh is equal to 1 upon k dash। तो हमारे पास अब हेनरी लॉ की स्टेटमेंट बनती है x is proportional to p और p is proportional to x. The partial pressure of a gas in a vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. This is the Henry law. Now the limitations of Henry law. There are some limitations in the Henry law, and the first limitation is it is less accurate at high pressure. ऐसा इसलिए है जैसे हाई प्रेशर हो जाएगा तो गैसेस जो है वो किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, यानी कि डिसोल्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर एज बी इंक्रीज प्रेशर। और दूसरी बात, गैसेस का लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। हाई प्रेशर के ऊपर गैसेस जो है लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। दूसरा है टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। लो टेम्परेचर के ऊपर भी गैसेस जो है ना वो इक्विलिब्रियम से नहीं होती है लिक्विड से, तो उस लो टेम्परेचर के ऊपर भी हेनरी लॉ वर्क नहीं करती है। थर्ड लिमिटेशन है गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल, और उन गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है जो हाईली सॉल्युबल हो। सॉल्युबल हो जाएंगे तो उनका पार्शियल प्रेशर ऐसे ही कम हो जाएगा, जिससे हेनरी लॉ वर्क नहीं करेगी। और फोर्थ है नाइदर रिएक्शन ऑफ द गैस नॉर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्वेंट अकर। रिएक्शन हो जाए तब भी गैस गैस नहीं रहेगी, डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो जाए तो गैस के मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, तो उस समय भी, ऐसी स्थिति में भी हेनरी लॉ वर्क नहीं करती है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन। फर्स्ट है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बिवरेजेस। कार्बोनेटेड बिवरेजेस सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे सोडा वाटर हो गया, बियर हो गई, शैंपेन हो गई, इन बोतल्स को क्या किया होता है, हाई प्रेशर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड इनमें डाली गई होती है, और जब हम इन बोतलों को खोलते हैं तो अंदर का जो प्रेशर, हाई प्रेशर है, वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होता है, जिससे उनके अंदर जो गैस है वो जैसे ही प्रेशर फॉल होता है वो गैस इफरबसेंस के साथ बाहर निकलती है, जिससे जो कार्बोनेटेड बिवरेज होगा या शैंपेन होगी वो ठंडी हो जाती है और ठंडी हो जाती है। दूसरा है इन डीप सी डाइविंग। जो लोग डीप सी में डाइविंग करते हैं तो वो अपने साथ गैस सिलेंडर्स ले जाते हैं, और गैस सिलेंडर में एयर अगर वो ले जाएं ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, तो अंडर प्रेशर जब काफी नीचे जाएंगे तो अंडर प्रेशर क्या होगा, नाइट्रोजन ब्लड में डिजॉल्व हो, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ डिजॉल्व हो जाएगी। तो क्या होगा, अब ब्लड में डिजॉल्व हो गई तो नाइट्रोजन डिजॉल्व हुई, अब जब वो बाहर आएंगे तो नाइट्रोजन ड्यू टू लो प्रेशर नाइट्रोजन ब्लड से बाहर आना शुरू होगी। अब बाहर आने से पहले नाइट्रोजन के बबल्स बनेंगे तो वो बाहर ब्लड से बाहर नहीं आ पाएंगे, जिससे कैपिलरीज क्या होगी, ब्रस्ट हो सकती है और ब्लॉक हो सकती है। इस स्थिति को हम बोलते हैं बैंड्स, और ये हार्मफुल होती है और पेनफुल होती है। तो स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को
रिप्लेस कर देते हैं हीलियम से, अर्थात हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1%। ऐसा मिक्सचर वो ले जाते हैं। दोबारा लिखते हैं इसको। जो मिक्सचर होता है उसमें हीलियम ये होती है 11.7% और नाइट्रोजन होती है 56.2% और ऑक्सीजन होती है 32.1%। अब इसमें हीलियम क्या है? हीलियम इज लेस डिसॉल्व इन, और ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हीलियम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से छोटा होता है, तो ये सेल वॉल के बाहर भी आ जाती है, जिससे स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं उनको सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती, और जब वो बाहर आते हैं तो हीलियम इजीली एस्केप कर जाती है। इसलिए दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ इन स्कूबा डाइविंग। एट हाई एल्टीट्यूड जो क्लाइंबर्स होते हैं माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं, अब हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन क्या होती है? कम होती है। अब ऑक्सीजन कम होती है तो उनका ब्लड क्या करता है? डिमांड करता है ऑक्सीजन की ज्यादा, और ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड करता है, लेकिन ऑक्सीजन हाई एल्टीट्यूड में नहीं मिल पाती, तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन यूज होती है वो हमारे ब्रेन में होती है। तो ब्रेन को जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो उनकी थिंकिंग में इफेक्ट पड़ जाता है, उनकी थिंकिंग कम हो जाती है, दे आर अनेबल टू थिंक क्लियरली। इस स्थिति को बोलते हैं ANOXIA, इट इज नोन एज एनोक्सिया। तो हाई एल्टीट्यूड पे भी प्रेशर कम होने के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे ब्लड में ऑक्सीजन उतनी नहीं जा पाती, ब्रेन में नहीं पहुंच पाती, और ब्रेन में नहीं पहुंच पाती तो एनोक्सिया, थिंकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। नेक्स्ट है हमारा इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। स्कूबा डाइवर्स है हाई डेप्थ में जब नीचे चले जाते हैं तो उनके लंग्स जो हैं ढंग से फंक्शन नहीं कर पाते, तो इसीलिए उनके लिए जो प्रेस्क्राइब की जाती है वो एयर की जगह हीलियम युक्त द गैस मिक्स्ड विद हीलियम उसको यूज करेंगे, तो उनके लंग्स जो है इन डेप्थ अच्छे से फंक्शन करेंगे। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। प्रॉब्लम है अब एक कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड एट 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। The Henry law constant for carbon dioxide at 298 Kelvin is 1.67 K bar. सॉल्यूशन है इसका, दिस इज वाटर एंड ऑक्सीजन। अब हमने इनकी मोल फ्रैक्शन को मान लिया x1 एंड x2। हमारे पास गिवन है KH की वैल्यू, दिस इज KH की वैल्यू है 1.67 इंटू K बार, और K का मतलब होता है 10⁻3, तो ये वैल्यू हो गई। और P की वैल्यू दी हुई है 4 एटमॉस्फेरिक, इसको हमने बार में कन्वर्ट कर दिया तो ये 4 बार। अब इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P इज इक्वल टू KH इंटू x2। x2 क्यों लिया? क्योंकि x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब x2 क्या हो गया? P अपॉन KH, और x2 हो गया P की वैल्यू भरी 4 बार और KH की वैल्यू भरी 10⁻³ -3, 1.67 इंटू 10⁻³ बार। बार से बार कैंसिल हुआ तो हमारे पास ये आ गया 2.395 इंटू 10⁻³ और हमें पता है कि x2 मोल फ्रैक्शन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन N1 प्लस N2, दैट इज number of moles of one component and the number of moles of second component। अब हमारे पास x2 आ गया 4 बार अपॉन 1.67 इंटू 10⁻³ बार। अब बार से तो बार कैंसिल हो गया था, ये तो है, और ये इतना था, x2 की वैल्यू ये है। अब हमारे पास ये देखिए N2 वैसे ही, और N1 की जगह 1000 अपॉन
18 is the molar mass of water and 1000 is its volume। तो ये जो इसका वॉल्यूम है और इसके जो मोलर मास है इससे डिवाइड किया तो N1 आ गया हमारे पास। और ये कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 2.935 इंटू 10⁻³ और N2 हमारे पास आ गया, इसको हमने सॉल्व किया तो 0.133 प्लस 2.9395 इंटू 10⁻³ N2। N2 हमने सेपरेट कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई और N2 इट इज इक्वल टू 0.133 डिवाइडेड बाई 0.997605 और ये जो वैल्यू है ये लगभग 1 के बराबर है, तो हमारे पास यही आ गया 0.133 N2 की वैल्यू। और therefore the amount of carbon dioxide dissolved is equal to 0.133 multiplied by the molar mass of carbon dioxide और ये कितना है 44। तो हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज 5.85 ग्राम। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं, वर्कशीट ढंग से करनी है। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू।